Good afternoon. Today, we, the members of Department of Teacher Training and Non-Formal Education, are fortunate to have amongst us two esteemed dignitaries. It gives me immense pride to introduce each one and honor them with a token of appreciation for taking the pain to grace this occasion of annual function with their presence and add value to it. I would like to begin by taking the pleasure of introducing our honorable chief guest, Dr. Professor Muhammad Aslam Parvez, who has a doctorate in plant physiology from Aligarh Muslim University, is currently Vice Chancellor of Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad. Earlier, he was Principal of Zakir Hussain Delhi College, Delhi University, where he taught in Botany Department for more than 2 decades. Before joining Zakir Hussain Delhi College, he was teaching at Botany Department of Aligarh Muslim University. His research, teaching, and administrative experience is spread over more than 35 years. He is a science communicator and has 5 books and more than 350 popular science write-ups to his credit. He is recognized nationally and internationally as a science communicator. His current research is focused on interface studies of science, environment, and religion. He is founder and editor of Urdu Science, India's first and only popular science and environment monthly magazine published in Urdu since February 1994. He heads the Islamic Foundation for Science and Environment, India, a voluntary, a non-profit charitable organization. Through this platform, he spreads scientific and environmental awareness and aptitude to the population in general and to the students of madrasas, Islamic theology schools. He writes books and conducts awareness programs for students and teachers of Dini Madaris and schools. His articles on scientific topics have been included in Urdu textbooks of NCERT and several other textbooks boards of different states of the country. Besides, he has contributed chapters to books and encyclopedia published by various Western universities and publishers. Notable in his chapter, Scientific Innovation and Al-Mizan in Islam and Ecology, published by Harvard University Press 2003, and Man and Nature in Islam in Encyclopedia of Religion and Nature, published by Continuum Publishers UK 2005. The latest being Exploring the Green Dimensions of Islam. In the Changing World Religion Map, Sacred Places, Identities, Practices, and Politics, Stanley D. Brunn, editor, Springer Verlag 2015. He has been invited to deliver lectures by universities like Harvard, Yale, and Toronto, besides many other institutions and organizations. He was awarded an international visitorship by the US government in 1995 to participate in the program Environmental Education in US. He was selected as one of the South Asian scholars to participate in a 3-week program of University of Louisville, Kentucky, USA, entitled Religion and Society, a Dialogue, held in different states of USA from 27th October 2007 to 17th November 2007. He has visited Belgium, Canada, France, Germany, Greece, Indonesia, Jordan, Kuwait, Malaysia, Morocco, Nepal, Netherlands, Saudi Arabia, Singapore, Spain, Switzerland, Italy, Turkey, UAE, UK, and USA. Thank you, sir, for giving us the privilege to encounter a personality such as yours. I now request Professor Aslam Parvez, sir, to please come up on the stage and enlighten us concerning this essential attribute of a teacher.
प्रोफेसर इलियास साहब, डीन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, प्रोफेसर सारा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के दीगर प्रोफेसर साहिबान, ख़ास तौर से प्रोफेसर रियाज शाकिर साहब, मेरे साथियों, प्यारी बच्चियों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे आज ये सआदत हासिल हो रही है कि मैं इस अंसारी ऑडिटोरियम में, जिसके बाहर सड़क से पता नहीं कितनी दफ़ा मैं गुज़रा हूँ, मुझे मौका मिल रहा है यहाँ आपसे गुफ्तगू करने का। ये मेरे लिए एक एज़ाज़ है कि एक अजीम हस्ती के नाम पे जो ये ऑडिटोरियम कायम है और एक अजीम इदारे में, उसमें मुझे आपने इज़्ज़त बख्शी और मुझे हुक्म दिया। मेरे पास जब प्रोफेसर सारा का मैसेज पहुंचा तो बिलाशुबा ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल वक्त था, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर है आखिर, और इस वक्त किसी हेड को, इंस्टीट्यूशन के हेड डिपार्टमेंट छोड़ना, यूनिवर्सिटी छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसमें दो दिलचस्पी थी मेरी। एक तो ये कि जब ये ख़बर आई थी उस वक्त मुझे ये खुशखबरी मिली कि प्रोफेसर सारा अब यहाँ पर हेड हैं, और मैं समझता हूँ कि किसी उस्ताद के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती कि वो अपने किसी शागिर्द को एक बहुत अच्छे मकाम पर देखे। मेरी ये खुशकिस्मती है कि मुझे थोड़ा सा मौका मिला प्रोफेसर सारा की ज़िंदगी में कुछ तब्दीली लाने का, इन्हें कुछ पढ़ाने का, इन्हें कुछ सिखाने का। कैसी टीचर हैं, कैसी हेड हैं, ये आप लोग जानते होंगे आपके डिपार्टमेंट की, और जिसका मैंने यहाँ मुज़ाहरा देखा वो यकीनन मेरे लिए भी बहुत हौसला अफजा था। दूसरी अहम वजह ये थी कि मुझे ये लगा कि मुझे एक मौका मिल रहा है बहुत अजीम हस्तियों को एड्रेस करने का। अजीम हस्तियाँ किस लिए? क्योंकि यहाँ वो लोग बैठे हुए हैं जो कल के टीचर्स होंगे, मेमार होंगे कौम के, द बिल्डर्स ऑफ आवर नेशन। मेरे लिए टीचर बहुत अहम है, हमेशा से रहा है, और टीचर का एक बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए मैंने आज जो आपके लिए उन्वान चुना है वो चेंज मेकर का है, तब्दीली के नकीब। और समाज में हर दौर में तब्दीली की ज़रूरत होती है, तो मुझे लगा एक मौका मिलेगा मुझे उन टीचर से बात करने के लिए जिनको जामिया अब लॉन्च कर रहा है। आप सब लोग अगर अपनी स्टूडेंट लाइफ को याद करें, जैसी मुझे भी याद है, तो आपको कई तरह के टीचर्स याद आएंगे। उनमें यकीनन एक ज़ुमरा, एक कैटेगरी वो होगी जिन टीचर्स ने आपकी ज़िंदगी पे बहुत असर डाला है, प्रोफाउंड इफ़ेक्ट। ना सिर्फ ये कि वो सब्जेक्ट के अच्छे टीचर रहे होंगे, बल्कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी पे भी कुछ असर डाला होगा। तो मेरी पहली आपसे गुजारिश ये है कि उन टीचर्स को सामने रखिएगा और ये कोशिश कीजिएगा कि आप ऐसे टीचर बन सकें जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को मुतासिर किया है। और यकीनन ऐसे टीचर्स भी होंगे जिनको आप बहुत अच्छी तरह याद नहीं करते होंगे। तो ख्याल ये रखिएगा कि जो उनके यहाँ कमियाँ थीं वो आपकी ज़िंदगी में ना आए, आपकी टीचिंग में ना आए, उनसे बचना होगा, और जो अच्छे टीचर्स थे उनकी तरफ देखना होगा। दूसरा अहम इशू ये है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि टीचर का काम महज किसी निसाब को, किसी करिकुलम को तैयार करना और उसको पढ़ाना और वक्त के फ्रेम में पढ़ा लेना नहीं है। ये 25-30% से ज़्यादा मैं नहीं समझता कि जिम्मेदारी किसी टीचर की होती है। असल काम टीचर का जो है वो ग्रूमिंग का है, ट्रेनिंग का है। ख़ास तौर से वो लोग आप में से जो प्राइमरी स्कूल्स में जाएंगे वो सबसे कीमती है मेरे लिए, क्योंकि वही वो स्टेज है जिसमें बच्चों के जहन बनते हैं। सबसे अच्छा स्टफ़ उन लोगों को मिलेगा जो प्राइमरी स्कूल से जुड़ते हैं और उन बच्चों को अटेंड करते हैं। यही वो स्टेज होती है जिसमें बच्चों में हमें वो वैल्यूज़ डालनी है, वो इंसानियत डालनी है, वो इंसान दोस्ती डालनी है जिसका आज फुकदान बहुत नज़र आता है हमें।
क्योंकि आज के चैलेंज के दौर में हम सब जानते हैं कि एक चैलेंज का दौर है। क्यों चैलेंज का दौर है? कि नफ़रतें बढ़ रही हैं, हम तकसीम होते चले जा रहे हैं। तो जब नफ़रतें बढ़ती हैं तो हमें मोहब्बतें बढ़ा देनी चाहिए, जब अंधेरा बढ़ता है तो रोशनी बढ़ा देनी चाहिए। और मैं समझता हूँ, जैसे मेरी एक बच्ची अभी ये बात कह के गई कि उर्दू मोहब्बत की ज़बान है, उर्दू बोलने वाले और उर्दू के इदारे से अगर मोहब्बतों के चिराग रोशन नहीं होंगे, पैगाम नहीं जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे? और उसके पैगंबर आप होंगे, मैसेंजर्स आप लोग होंगे। तो आपका फोकस ये रखना होगा आपको कि आप सही माने में तालीम के और तरबियत के मानी को समझें। बल्कि अगर आप मुझे इजाज़त दें, क्योंकि यहाँ बहुत सीनियर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड बैठे हैं, लेकिन और टीचर्स बैठे हैं, असातिज़ा बैठे हैं, मैं ये जसारत करूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद तालीम और तरबियत को हमें तरबियत और तालीम कहनी चाहिए, क्योंकि तरबियत का रोल पहले है, तालीम का बाद में। अगर तरबियत अच्छी है, मिसाल के तौर पे मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी से मिसाल आपको देना चाहूँगा कि आज के ज़माने के हिसाब से मेरी वालिदा तालीम याफ्ता नहीं थी, शी हैड नो फॉर्मल एजुकेशन, लेकिन उनकी तरबियत मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल रखती है और हमेशा रखेगी। शी वॉज माई प्राइम ग्रूमर। तो मुझे, और फिर जितना मैंने देखा, तरबियत की अहमियत शायद तालीम से ज़्यादा है। तालीम बहुत होती है, अगर तरबियत ना हो तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे बात करने को जी नहीं चाहता, उनकी कंपनी में आप 2 मिनट एंजॉय नहीं कर सकते। तो ये दोनों पहलू आपको जहन में रखने हैं। और दूसरा एक बहुत अहम रोल जो सब असातिज़ा का होता है, मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूँगा, कि जिसको हम पहली वही कहते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये पहली वही नहीं है, ये पहला हुक्म है। इसे हम इस तरह क्यों नहीं समझते? यानी पहला हुक्म इस्लाम जो लेके आया इस दुनिया में वो ये था कि रीड विद द नेम ऑफ दाई क्रिएटर, पढ़िए। और किस पे आया? नबी उम्मी पे। और रेलेवेंस बढ़ जाती है कि पहला हुक्म वहदत का नहीं आया, नमाज का नहीं आया, रोजे का नहीं आया, उन अनकार का नहीं आया जिनका हम जिक्र करते। पहला हुक्म है पढ़ो। नबी उम्मी को पहली वही क्या आई, पहला हुक्म क्या? इक़रा। लेकिन बहुत अहम चीज साथ लगाई गई कि बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ विद द एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्रिएटर। ये बहुत अहम चीज़ है और यहीं पे वो तरबियत का पहलू है, क्योंकि एट्रीब्यूट्स ऑफ क्रिएटर जो हैं वो सब अच्छे एट्रीब्यूट्स। अगर आपकी एजुकेशन अच्छे एट्रीब्यूट्स के साथ है, यू विल बी द सर्वेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटी, आप इंसानियत के खादिम होंगे। और अगर ये एट्रीब्यूट्स नहीं हैं तो फिर आप ये हिसाब लगाएंगे कि कितने पैसे में कितना घंटा मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट 500 रुपये घंटे का है या 1000 रुपये घंटे का, बच्चा दे सकता है या नहीं मुझे नहीं पता, मेरे टाइम की कीमत है। मैंने ऐसे टीचर्स को भी सिलेक्शन कमेटीज़ में भी देखा है, मिला भी हूँ और उनके हिसाब किताब को भी देखा है। आपको ऐसा टीचर नहीं बनना। आपको ऐसा टीचर बनना है जिससे मुझे मिले कि उनके घर में जाता था, कभी वो मेरे घर पढ़ाने आ जाते थे और उन्होंने कभी एक पैसा मुझसे नहीं लिया। वो टीचर्स भी थे। वो ये समझते थे कि नौकरी करते हैं क्योंकि हमें अपना घर चलाना जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन बाकी उन्हें लगता था कि किसी को पढ़ा के मदद करके पैसा लेना उनके नज़दीक पाप होता था, गुनाह होता था कि मैं क्या अपने हुनर को, अपने इल्म को बेचूंगा। ये बहरहाल एक थॉट है, ज़रूरी नहीं सब उससे एग्री करें, लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि ये पहला हुक्म है। और इसमें दूसरी एक अहम बात बड़ी है जो मैं आपसे शेयर करूंगा कि जिस कौम के ऊपर पहला हुक्म उसके नबी के ऊपर ये आया कि पढ़ो, वो आज इस मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में एजुकेशनली मोस्ट बैकवर्ड कौम है। क्यों है? ये साबित करता है कि हमारा कुरान से रिश्ता क्या है। अगर हम कुरान से कनेक्टेड होते, कुरान के अहकामात को समझते और इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ भी हमारे लिए उतनी है मोती जितना अक़ीमुस्सलाता वातु ज़काता है, तो जिस तरह रोज़े नमाज का एहतमाम था, तालीम का भी एहतमाम होता। ये तक़सीम हमने की है, बड़ी भयानक तक़सीम, जिसने रिचुअलिस्टिक बना दिया है इस इस्लाम को।
हम घड़ी देख के अजान देते हैं, नमाज के लिए भागते हैं, लेकिन वक्त देख के बच्चों की तालीम का इंतज़ाम नहीं करते, वरना एजुकेशनली बैकवर्ड ना हो। दूसरी एक चीज़ इससे जुड़ी हुई जो है वो बहुत अहम, इसी सूरह अलग की अगली आयत है कि अल्लज़ी अल्लामा बिल कलम, ये अल्लाह ताला अपना एट्रीब्यूट बयान करता है कि तुम्हारा रब वो है जिसने कलम से लिखना सिखाया, और अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। यानी कलम से लिखना सिखाना उस परमात्मा की, ईश्वर की, अल्लाह की अपनी निशानी है। उसने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था, तो क्या वो सिखाने के लिए हमारे पास आया नीचे उतर के? नहीं। किसने सिखाया? टीचर ने सिखाया, माँ बाप ने सिखाया, समाज ने सिखाया। यानी ये सिखाने का काम जो है ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह की सिफत है। दिस इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ द क्रिएटर। उसको आप जिस नाम से भी जानते हो, ब्रह्मा कहें, ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, ये उसके एट्रीब्यूट्स में से है। आप अपनी अहमियत समझिए, आप अपनी अहमियत समझिए कि आप क्या काम करने जा रहे हैं। इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है, लेकिन इससे बड़ी जवाबदेही भी कोई नहीं है, अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी भी नहीं है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बच्चे हैं, पढ़ते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि टीचिंग जो है वो आग का खेल है। आग का खेल क्यों है? कि अगर मेरे पढ़ाने में कमी रह गई और कोई बच्चा मेरी कमी की वजह से उस सब्जेक्ट से बददिल हो गया, या इतना डर गया, क्योंकि शायद मैं बहुत रौब रखता था क्लास में, डरा के रखता था, सवाल एंकरेज निकलता था, बच्चों के साथ फ्रेंडली नहीं था, कि वो स्कूल छोड़ गया, ड्रॉप आउट हो गया, तो उसकी ज़िंदगी में जितनी खराबियां आएंगी, जितने नुकसानात होंगे, उसकी जनरेशन और सब्सिक्वेंट जनरेशन्स में उन सब में हिस्सेदारी, भागीदारी मेरी भी होगी। यानी ये वही चीज़ है जिसको हम गुनाह जारिया कहते हैं। अगर एक बच्चा भी मेरी वजह से स्कूल छोड़ जाता है, बददिल हो जाता है, तो मैं उसके लिए जवाबदेह हूँ, क्योंकि उसका जिम्मेदार मैं हूँ। उसी तरह अगर मैंने किसी बच्चे की ज़िंदगी संवार दी, उसको मोटिवेट कर दिया, उसको सही रास्ता दिखा दिया, उसे एक अच्छा इंसान बना दिया, तो ये मेरे लिए सवाब जारिया है। ये वो चीज़ है जिसके डिविडेंड्स मुझे हमेशा मिलेंगे, और मेरी नज़र में इससे अच्छा कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट नहीं होता कि मैं अगर डेडिकेशन के साथ अपने बच्चों को अच्छा इंसान बना सकूं। मैं जब तक यहाँ जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में प्रिंसिपल रहा, तो पहले दिन जब सेशन शुरू होता था और ओरिएंटेशन लेक्चर हुआ करता था, तो उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट मेरे यही होता था, जो मैं बच्चों को समझाता था कि बेटा, आप लोग किस परसेंटेज से पास आउट करते हैं वो मेरे लिए इतना अहम नहीं है, जितना अहम ये है कि आप कितने अच्छे इंसान बन के बाहर निकलते हैं। क्योंकि अगर हम आपको अच्छा इंसान नहीं बना सके, तो ये इज्तिमाई फेलियर है, इट इज़ ए कलेक्टिव फेलियर ऑफ ऑल द टीचर्स ऑफ दिस कॉलेज, कि अगर आपको हम अच्छा इंसान नहीं बना सके। और मुझे खुशी है कि जाकिर हुसैन कॉलेज मशहूर रहा इस बात के लिए कि हमारा कल्चर, हमारा वैल्यू सिस्टम दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमेशा गिना जाता रहा, क्योंकि टीचर का काम ही ये है। और हम जब तक कामयाब टीचर नहीं हैं, जब तक कि हम अपने बच्चों को इंसान न बना सकें। अगली स्लाइड मेरी यह है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा थाई श्री गुरुवे नमः। क्या मतलब है इसका? हे गुरु, who are in the form of Brahma, Vishnu, Maheshwara, are the very, that is Sakshat Prabrahma, Supreme Brahman, that which is within me, I salute you. पिछली अगर आप आयत देखें कि इंसान को वो इल्म दिया जैसे वो नहीं जानता था, इसको मैं थोड़ा सा और एलाबोरेट करूंगा अगली स्लाइड से कनेक्ट करने के लिए। आप सोचिए कि एक बच्चा पैदा हुआ जिस घर में, अगर वो हिंदी घराना है, उर्दू घराना है, तो वो उर्दू बोलता है। उसको आप तमिलनाडु ले जाइए, तमिल बोलने लगेगा। उसको आप कर्नाटक ले जाइए, कन्नड़ बोलने लगेगा। आप उसे जर्मन ले जाइए, जर्मनी बोलने लगेगा, जर्मन ज़बान बोलने लगेगा। यानी
उस बच्चे में सलाहियत है हर जबान को बोलने की। इसी तरह जो बच्चा बड़ा हुआ उसको आपने कारखाने में बिठा दिया, खिराद मशीन का काम सीख लेगा, स्कूटर रिपेयर पे बिठा दिया, स्कूटर रिपेयर सिखा दीजिए, कार रिपेयर, यानी जो आप उसे सिखाते हैं, यानी जो एक्सपोजर आप उसे देते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, वो उसकी कैपेबिलिटी। आप सब्जेक्ट्स के लिए देखते होंगे कि आप जिस सब्जेक्ट को चुन लेते हैं आप उसे पढ़ लेते हैं, क्या शो करता है ये? इट शोज़ कि हर इंसान के अंदर हर चीज़ की कैपेबिलिटी है, जिसकी वाज़ेह मिसाल हमें वहाँ मिलती है कि जहाँ अल्लाह ताला ये कहता है कि अल्लमल आदमल इस्मा, हमने आदम को हर चीज़ का इल्म दिया है। आज की ज़बान में हम ये कह सकते हैं कि वो कैपेसिटी जो है हमारी, वो हमारी जीन्स के अंदर है, हमारे क्रोमोसोम्स में है। वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, यानी हर इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो सब कुछ कर सकता है। तो फिर किस चीज़ का फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है उस एनवायरनमेंट का जो उसे मिलता है, उसको क्या घराना मिला, उसको क्या माहौल मिला, उसको क्या टीचर्स मिले, उन्होंने उसको कैसे ग्रूम किया। अगर उसके एट्रीब्यूट्स को ग्रूम किया जाता है तो वो उसकी शख्सियत उसी रुख से निकलती है। इसी बात को इस श्लोक में कहा गया है, जो पहला श्लोक है जब पढ़ाई शुरू होती है, तालीम शुरू होती है, पढ़ा जाता है कि ये सारी कैपेबिलिटीज गुरूस की शक्ल में मेरे अंदर हैं, जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूं, जिन्हें मैं सैल्यूट कर रहा हूं, वो मेरी कैपेबिलिटीज हैं। जिनको गुरूम कराता है मेरा वो टीचर, जिसकी तरबियत मुझे मिलती है। और आप तसव्वुर कीजिए कि एक घर है ऐसा जिसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए वो बच्चे जो पैदा हुए वहाँ पे वो एक पोटेंशियल रिसोर्स है जिसको ग्रूम किया जा सकता है। पता नहीं उसमें से कौन कलाम होता, कौन एनीबॉडी, कुछ भी वो बन सकते थे अगर उनकी ग्रूमिंग होती। तो उसके लिए वो घर अगर इनकैपेबल था तो फिर उसका समाज, उसकी सोसाइटी, उन्होंने उन बच्चों के लिए क्या किया। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस सोसाइटी की जहाँ वो बच्चे हैं कि उन बच्चों को एजुकेट किया जाए, उनके पोटेंशियल्स को निखरने का, खिलने का मौका दिया जाए। और ये एक बहुत बड़ी सोशल सर्विस है, खिदमत है इंसानियत की, क्योंकि कोई ह्यूमन पोटेंशियल, देखिए ये जेनेटिक्स भी हमें पढ़ाती है कि हम में से हर कोई एक यूनिक जीन कॉम्बिनेशन लेके आए। जिस तरह आपके ये उंगलियों के निशान यूनिक है, जो थंब इम्प्रेशन है, किसी दो लोगों के थंब इम्प्रेशन एक से नहीं होते, किसी की जीन्स एक सी नहीं है, हर एक के अंदर नया एक जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, वो एक नई शख्सियत है। अगर उन जीन्स को एक्सप्रेस होने का मौका नहीं मिलता, वो शख्सियत वजूद में नहीं आती, तो पता नहीं कितनी अहम शख्सियत थी हमारे गली की, मोहल्ले की, सोसाइटी की, कम्युनिटी की, इस कंट्री की, जो वेस्ट हो गई बिकॉज वी कुडंट टैप इट। उसको एजुकेट करके हम वो उसकी शख्सियतों को बाहर नहीं निकाल सके, वो इंसानियत का कोई फ़ायदा किए बिना बाहर चला गया। ये मैंने स्लाइड इसलिए ली है कि मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते हैं कि कुरान आप पे फ़र्ज़ है। मुझको नहीं मालूम था जब तक कि मैंने खुद कुरान को नहीं पढ़ा। मुझे जो फ़राइज़ गिनाए गए थे, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, उनमें कुरान कहीं नहीं था। तौहीद का मफ़हूम मुझे नहीं पता था। ये बताया गया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक अल्लाह है, हम उसके मानने वाले, यही तौहीद है, इसलिए मोनोथिस्ट है, मोनोथिज्म है। ये मेरे फ़राइज़ में कुरान नहीं था जब तक मैंने खुद कुरान को नहीं समझ के पढ़ा। और ये बहुत अहम चीज़ है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान ला रद्दुका इला माद, बेशक वो हस्ती जिसने तुझ पे कुरान फ़र्ज़ किया है तुझे एक अंजाम को पहुँचाने वाली है। फ़रज़ अलैकल कुरान साफ लिखा हुआ है। और यह ज़ाहिर है अगला सवाल ये आता है कि अगर मुझे यही नहीं पता कुरान मुझ पे फ़र्ज़ है तो मैं अमल किस चीज़ पे करता हूँ? मैं अमल करता हूँ चंद आयतों पे जो मुझे बचपन से सिखाई गई हैं, ये अमलन बताई गई हैं। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि अक़ीमुस्सलाता वातु ज़काता, कि बेशक अल्लाह का हुक्म है कि सलात कायम करो, ज़कात दो, कुतिबा अलैकुम सियामा, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए, लिख दिए गए जैसे पहली कौमें भी लिखे गए थे। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि ये फ़राइज़ अहम नहीं है या इनकी अहमियत कम है, बहुत अहमियत है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यही अहमियत और अहकामात की भी तो है, वो कहाँ है कुरान के? चूँकि कुरान हम समझ के नहीं पढ़ते इसलिए हमें और अहकामात का पता नहीं है। कुरान से हमारा कनेक्शन नहीं बचा, हम उसको अक़ीदत के लिए पढ़ते हैं, समझ के नहीं पढ़ते, अरबी आती नहीं, ट्रांसलेशन पढ़ते नहीं। उसका नुकसान क्या है? बहुत छोटी सी आयत से मैं शुरुआत करता हूँ उस नुकसान को बयान करने के लिए। और ये वो नुकसान है जिसको आपको
अपनी टीचिंग में ध्यान रखना है कि बच्चों के अंदर ये चीज़ें इनकलकेट करनी है। पहली चीज़ जो आपको इनकलकेट करनी है वो ये करनी है कि वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को इज्जत के लिए, तकरीम के लिए पैदा किया है। यानी अगर मैं मुसलमान हूँ तो मुझ पर बाइंडिंग है कि मैं हर इंसान की इज्जत करूँ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सैयद, कसान, पठान, चूड़ा चमार, कोई भी हो, क्योंकि मेरे रब का हुक्म है वलक़द कर्रमना बनी आदम। और इंसान की इज्जत सिर्फ उसकी हाव भाव या सूरत शक्ल को नहीं होती, उसकी इज्जत उसके एहसासात की भी होती है, उसकी आइडियोलॉजी और उसकी थॉट्स की भी होती है, उसकी पसंद और नापसंद की भी होती है। यानी मेरे बराबर में बैठने वाला आदमी अगर मेरी पसंद के खिलाफ बात करता है, उसका फेथ मेरे से अलग है, मेरे फेथ के खिलाफ बात करता है, मैं उसके बेइज्जती नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे रब का हुक्म यह है कि लक़द कर्रमना बनी आदम। अब आप इमेजिन कीजिए, जो समाज, जो सोसाइटी इस एट्रीब्यूट के साथ बड़ी होती है, उस समाज में कभी झगड़ा हो सकता है? ये मेरी कही भी बातें नहीं है, दिस इज कुरान, जो पूरी इंसानियत के लिए आया था। ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि बड़ी ट्रेजेडी भी है और मैं समझता हूं हिस्टोरिकल ब्लंडर है जो उन्होंने किया कि इस कुरान को अपनी किताब कह के अपना ठप्पा लगा दिया। दे क्रिएटेड ए बायस, एक बायस पैदा हो गया, क्योंकि कुदरती बात है, मैं अगर मुसलमान हूं तो मुश्किल है मेरे लिए इतना वक्त निकालना, मैं जब कुरान को समझ नहीं चाहता। तो मैं अर्ज आपसे ये कर रहा था कि हर इंसान की इज्जत, उसकी पसंद नापसंद की इज्जत, उसके एहसासात की इज्जत, उसके बिलीफ सिस्टम की इज्जत, उसके फेथ की इज्जत, ये हम पे बाइंडिंग है। ये कुरान का हुक्म है। उसी तरह जिस तरह अकीमुस्सलात व आतु ज़कात है, ये वैसे ही फ़र्ज़ है जैसे नमाज रोज़ा फ़र्ज़ है। ये क्यों नहीं प्रोपगेट होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि हम कुरान से दूर हैं और ये बड़ा मुश्किल काम है। माफ़ कीजिएगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये सब बातें कहने के लिए। इससे कतन ये मेरा मतलब नहीं है कि मैं जो अरकान हम अमल कर रहे हैं उनको कम करना चाहता हूँ, उनकी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन वही मोहब्बत, वही अटैचमेंट हमें कुरान के हर हुक्म से होना चाहिए। मेरे ऊपर बाइंडिंग है हर एक की इज्जत करना। डिफरेंस इसके साथ हमारी लड़ाइयाँ और दुश्मनियाँ क्यों पैदा होती हैं? ये तरबियत अगर हम अपने बच्चे को देंगे तो ये हिंदुस्तान इसी तरह कायम रहेगा जैसे आज है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। क्योंकि इस मुल्क की मिट्टी पे मुझे इतना भरोसा है कि मुझे यकीन है कि ये इंसानियत को सपोर्ट करती आई है, इसमें इंसानियत ख़त्म नहीं हो सकती। वक्ती चीज़ें हो सकती हैं लेकिन इंसानियत सरवाइव करेगी, किसी मुल्क में करे ना करे, मेरे मुल्क में, मेरे हिंदुस्तान में करेगी। और मेरे हिंदुस्तान पे एक बात मुझे याद आई कि रिपब्लिक डे के प्रोग्राम में हम लोग अच्छे प्रोग्राम इनोवेटिव करते हैं मानू में, उर्दू यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ प्रोग्राम्स के बाद जब मेरा एड्रेस हुआ तो मैंने वहाँ एक बात कही थी जो मैं आपसे भी शेयर करूँगा इस प्लेटफॉर्म पे। मैंने ये कहा कि हम लोग बहुत मजबूती से और शिद्दत से ये बात कहते हैं कि ये मुल्क हमारा है, यकीनन है, लेकिन मैंने कहा इसमें एक जुमला और ऐड कर लीजिए कि ये मुल्क हमारा है और उसमें रहने वाले भी हमारे हैं। दिस इज ए ग्रेट पैराडाइम शिफ्ट वी नीड। आप रहने वालों को डिसोन नहीं कर सकते। ये मुल्क मेरा है, इसमें रहने वाले भी मेरे हैं, वो किसी मज़हब के हों, किसी धर्म के हों, किसी स्टेट के हों। इसमें ना नॉर्थ साउथ का डिवाइड है, ना हिंदी उर्दू का डिवाइड है, ना हिंदू मुस्लिम का डिवाइड है, क्योंकि लक़द कर्रमना बनी आदम। मैं अगर मुसलमान हूँ तो मुझ पर यह बाइंडिंग है। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि जब से मैंने कुरान समझा है मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी इंसान की बेइज्जती ना करूं, उसके एहसासात को ठेस ना पहुंचाऊं, उसके जज्बात को ठेस ना पहुंचाऊं, उसकी इज्जत करूं, उसके ख्यालों की इज्जत करूं। आई हैव एवरी राइट टू डिफर। मेरे अपने ख्यालात हो सकते हैं, मेरी अपनी सोच हो सकती है, मेरा ईमान हो सकता है, मेरा अपना धर्म हो सकता है, लेकिन दूसरे के धर्म, ईमान, ये किसी चीज़ की बेइज्जती मैं नहीं कर सकता अगर मैं कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ। दूसरी, गुड, थैंक गॉड, दूसरी चीज़, ये बड़ी अहम चीज़ है, उसी से कनेक्टेड है कि ये लोग अल्लाह के सिवा
जिनको पुकारते हैं उन्हें गालियां ना दो, ये कुरान का हुक्म है। यानी दूसरे फेथ के लोग जब अल्लाह के सिवा अपने ईश्वर को या जिसको भी वो समझते हो पुकारते हैं तो तुम उन्हें गाली नहीं दोगे, तुम उन्हें बुरा नहीं कहोगे, ये अल्लाह का हुक्म है। उसी से कनेक्टेड है कि इंसान की इज्जत नहीं, उसके फेथ की भी इज्जत है और हम पे बाइंडिंग है। आप यकीन जानिए, मैं कभी राम नहीं कहता, श्री राम कहता हूं। मुझे इज्जत करनी है हर एक की। मेरे साथियों के, मेरे हम वतनों के अकायद से जुड़ी हुई अजीम हस्तियां हैं, उनकी इज्जत मुझ पे बाइंडिंग है, क्योंकि उनके एहसासात को मुझे ठेस नहीं पहुंचाना अगर मैं मुसलमान हूं तो। और मैं मुसलमान बनने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए ये बात आपसे शेयर कर रहा हूं कि मेरा कुरान, मेरा इस्लाम मुझे ये सिखाता है, और ये आप अगर सीख गए और ये आपने बच्चों को सिखा दिया तो हम बहुत जल्दी एक बहुत अच्छा समाज बना लेंगे, जिसमें लोग एक दूसरे से मोहब्बतें करेंगे जैसे करते आए, जैसे मैंने बचपन में देखा। देखिए, मैं अक्सर अपने यहाँ जो लोग, बल्कि अभी मेरी थोड़ी याददाश्त ख़राब है, एक प्रोग्राम में हमारे यहाँ मास कॉम जर्नलिज्म के एक जर्नलिस्ट आए, सतीश जैकब, मोस्ट प्रोबेबली शायद वही नाम था उनका, पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं, बहुत पुराने। तो मैंने उनसे जिक्र किया क्योंकि उन्होंने भी वो बचपन की दिल्ली देखी थी जो मैंने देखी है। आप यकीन जाने, इतना अच्छा माहौल लोगों के बीच में था, जो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा है, लेकिन वो कहीं जाने वाला नहीं है, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। ये हम लोगों के लिए, टीचर्स के लिए चैलेंज है कि हमें इस अंदाज से इंसानियत की खिदमत करनी है और इंसान पैदा करने हैं। तीसरा हुक्म इस सिलसिले में कि बुराई को इस तरीके से दफ़ा करो जो बेहतरीन हो। यानी हमें बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना। अगर हम देते हैं तो कुरान की खिलाफ वर्जी करते हैं, कुरान की तकज़ीब करते हैं, गुनाह करते हैं। बुराई का जवाब बेहतरीन भाई से देना है, ये अल्लाह का हुक्म है। हम क्यों नहीं इसको हर मदरसे में, हर घर में, हर मिंबर से कहते, बार बार ड्रिल करते दिमाग में, जिस तरह हम और चीज़ों को ड्रिल करते हैं कि देखो कभी बुराई का जवाब बुराई से मत देना, और इसके कितने अच्छे असरात होते हैं। कभी कोई आदमी कोई अच्छी बात कर जाता है। पिछले दिनों 2 लोगों का जिक्र, चर्चा बड़ा रहा मीडिया में। एक हिंदू भाई थे, एक मुसलमान भाई थे, जिनके बच्चों को अटैक किया गया तो उन्होंने मना किया कि काउंटर रिटेलिएशन मत करना, मेरे बच्चे तो मरे हैं, दूसरों के बच्चे ना मरें। यह है इंसानियत, और ये वही स्पिरिट है जो हमें सिखाता है कुरान के बुराई का जवाब बेहतरीन भलाई से देना है, बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना। इसको पढ़ाएगा कौन, सिखाएगा कौन? आप लोग। यही मेरा इंटरेस्ट है यहाँ आने का, यही चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप में से अगर सब लोग इस मिशन पे लग गए तो मैं समझता हूँ कि इंसानियत का मुस्तकबिल महफूज है। अब यहाँ देखिए, इंस्टेड ऑफ बीइंग जेलस ऑफ ईच अदर, ये मैं इंटरप्रिटेशन है वेदास से, ऋग्वेदा का है। इंस्टेड ऑफ बीइंग जेलस ऑफ ईच अदर, बजाय इसके हम एक दूसरे से हसद करें, क्लैशिंग विद ईच अदर एंड पुलिंग ईच अदर डाउन, ट्रू एजुकेशन शुड एनेबल ए पर्सन टू डेवलप द कैपेसिटी टू कोऑपरेट। साथ काम करने का एक जज्बा पैदा होगा। टू लिव एंड वर्क एज ए टीम, एक टीम की तरह हम रहें और काम करें। द वेदास अर्च अपॉन मैन टू असेंबल ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म, टू थिंक टुगेदर एंड टू वर्क टुगेदर फॉर अचीविंग ए कॉमन गोल। और अब एग्जैक्ट श्लोक को मैं कोट कर रहा हूं, ट्रांसलेशन को, कि मार्च टुगेदर, लेट योर वर्ड्स बी यूनाइटेड, लेट योर माइंड्स बी यूनाइटेड, accept your share of fortune just as the gods conquering accepted their portion of the sacrifice in ancient times. May your prayers be common, common be your fraternity. May your minds move with one accord. May your hearts work in harmony for one goal. May you be inspired by a common ideal. I offer for you a common oblation. May you resolve with one accord. May your hearts beat in unison. May your thoughts be harmonious, so that you may live together in happiness. कितनी ममासलत है दोनों पैगामात में, क्या फ़र्क है। इसीलिए देखिए, मैंने हमेशा ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में हमारे बच्चों की अक्सरियत गैर मुस्लिम हुआ करती थी, जिनको मैं पढ़ाता था। उनको भी मैं ही सबक देता था कि बेटा गो टू द टेक्स्ट, वेद नहीं पढ़ सकते, गीता पढ़ो, देखो क्या लिखा है, वैसा अमल करो।
रामनवमी मनाते हो, जानते हो राम जी ने क्या किया जिंदगी में, क्या उस जैसा कुछ करने को तैयार हो? ईद मिलादुन नबी मना रहे हो, जानते हो रसूल अल्लाह ने क्या किया था, उनकी से जिंदगी गुजार सकते हो या सिर्फ सेलिब्रेट करना जानते हो? अभी थोड़े दिन पहले जब सर सैयद की 200 साला तकरीबात मनाई गई अलीगढ़ में, तो मुझे एक गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे बुलाया गया, क्योंकि मैं अलीगढ़ का स्टूडेंट भी रहा हूँ, वहाँ पढ़ाया भी है, अलीगढ़ से भी मेरे दोनों तरह के रिश्ते हैं। तो वहाँ भी मैंने यही बात बहुत माजरत के साथ अर्ज करी कि बहुत अच्छी बात है सर सैयद के 200 साल हुए, आप सेलिब्रेट कीजिए, याद कीजिए सर सैयद को, लेकिन ये क्या बात है कि हमारा ऑब्सेशन सिर्फ पर्सनैलिटीज़ के साथ है, उनके मिशंस के साथ नहीं है। हम पर्सनैलिटीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, लोगों को जश्न मनाते हैं, उनके जो मिशन थे, उनकी जो मुहिमात थी, उसको भूल जाते हैं। रसूल अल्लाह के लिए इससे बड़ा ट्रिब्यूट क्या हो सकता है? ईद मिलादुन नबी पूरे साल के आप जिस किताब को लेके आए थे उस पर तो अमल कर लें, उसको समझ के तो पढ़ लें। हम ऐसा नहीं करते, इसीलिए सूरह फुरकान की अगर आयत नंबर 30 आप जाके पढ़ें, तर्जुमा उसका बहुत हिम्मत करनी होगी उसको पढ़ने के लिए। वो क्या है आयत के वकाल और रसूल या रब्बी इन्नी कौमी इत्तखिज़ु हाज़ल कुराना महजूरा, कि क़यामत के दिन रसूल ये गवाही देंगे कि मेरे परवरदिगार, मेरी इस कौम ने कुरान का मजाक उड़ाया है। दे रिडिक्यूल्ड द बुक। हिम्मत होनी चाहिए इस आयत को पढ़ने के लिए। क़यामत के दिन जिस उम्मत पे उसका रसूल ये गवाही दे रहा है कि मेरी इस कौम ने कुरान का मजाक उड़ाया है, उस कौम की हालत क्या होगी? और इसका बय्यन सबूत क्या है कि पहला हुक्म आया था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, और हम सबसे ज़्यादा इलिटरेट कम्युनिटी हैं आज दुनिया की। ये कुरान से रिश्ता दिखाता है हमारा। ये आई ओपनर्स हैं, और अगर अब भी हम नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। इंसानियत कुरान के बिना सरवाइव नहीं कर सकती, क्योंकि कुरान लेटेस्ट वर्जन है उन तमाम किताबों को जो आज तक उतरी, और गालिबन जिसका सिलसिला वेद से शुरू हुआ था, क्योंकि सोफिल उला और कोई हिस्टोरिकली नजर नहीं आता आज तक वेदों के अलावा। अल्लाह ताला खुद कुरान में ये कहता है कि ये वो कुरान है जो लास्ट बुक है रिवील्ड बुक्स की, और मुसलमानों के ईमान का ये हिस्सा है कि हम उन तमाम किताबों पे ईमान रखते हैं जो हमसे पहले आई हैं, उन तमाम पैगम्बरों पे, वो किसी भी धर्म के रहे हो अपने ज़माने के, हमारे ईमान का हिस्सा है। ये लेटेस्ट वर्जन है, ये आखिरी किताब है जिसकी अच्छा वजह क्या हुई किताबें आने की, क्योंकि खुद कुरान ये बताता है कि हर ज़माने में जब किताब आई तो उसको करप्ट कर दिया गया, उसको वेस्टेड इंटरेस्ट ने चेंज किया। इसीलिए कुरान के साथ अल्लाह ने इंतज़ाम कर दिया कि उसको लोग ज़बानी याद रखते हैं। आज करोड़ों लोगों को कुरान याद है, इसीलिए वो प्रोटेक्टेड है, वो एक सिस्टम है उसका प्रोटेक्शन का, इसलिए ये टेक्स्ट चेंज नहीं हो सकता, हमेशा से वही है, और वही है जो मैं आपके सामने उसकी ट्रांसलेशंस पेश कर रहा हूँ। अब देखिए, ये बहुत अहम आयत है कि जिसने किसी इंसान को खून के बदले या ज़मीन में फसाद फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल किया, उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल किया, और जिसने किसी को ज़िंदगी बख्शी, उसने गोया तमाम इंसानों को ज़िंदगी बख्श दी। यानी सिर्फ दो चीज़ें हैं, और वो भी इंडिविजुअल का काम नहीं है, अदालतों का काम है कि किसी को कत्ल के जुर्म में कत्ल किया जा सकता है या फसाद फैलाने के जुर्म में। अलावा इसके अगर किसी को कोई कत्ल करता है तो उसका जुर्म इतना बड़ा है कि जैसे उसने सारे इंसानों को कत्ल कर दिया, और अगर वो एक इंसान की भी ज़िंदगी बचाता है तो वो इतना अहम है कि जैसे उसने सारी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई। ये अगेन एक रेस्पेक्ट का खाना है कि इंसानियत और इंसान की ज़िंदगी उस क्रिएटर के नज़दीक कितनी अहम है, क्योंकि एक एक इंसान एक पोटेंशियल है, जैसे मैंने आपको बताया, एक यूनिक जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, पता नहीं उसके अंदर क्या सलाहियतें हों, पता नहीं वो समाज के लिए कल क्या करने वाला हो। हमने पता नहीं किसी वजह से उसको मार दिया, उसको कत्ल कर दिया। उसका मारना एक तरह से पूरी इंसानियत का मारना है, और अगर हमने किसी एक मौके पे किसी एक इंसान की जान बचा ली तो जैसे कि हमने पूरी इंसानियत को बचा लिया। एक और बड़ा क्लियर हुक्म हमारे लिए यह है कि हर एक के लिए एक रुख है जिसकी तरफ मुड़ता है, बस तुम भलाइयों की तरफ सबकत करो, भलाई के कामों की तरफ। यानी हमारे बीच में कंपटीशन किस चीज़ का होना चाहिए? अच्छे काम करने का। हर एक का एक ओरिएंटेशन होता है। हमारे लिए ओरिएंटेशन क्या है कि ओरिएंट योरसेल्फ टू डू गुड फॉर अदर्स एंड कम्पीट विद अनदर फॉर डूइंग गुड टू अदर्स। दूसरे के लिए कितनी भलाई उसने करी थी, मैं कितनी कर सकता हूँ। ये आयत यहाँ नजर नहीं आ रही है,
अगर कोई साहब नोट कर रहे हो तो ये बकरा 148 है, जो ये बता दिए कि हर एक के लिए एक रुख है जिस तरफ वो मुड़ता है, बस तुम भलाइयों की तरफ सबकत करो, कोशिश करो भलाइयों में एक दूसरे को बीट करने की, एक दूसरे को से आगे निकलने की। अगला इसमें से स्लाइड जो यहाँ पे इत्तेफाक से नहीं दिख रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये है वर्स सूरह इसरा 53, कुल्ली इबादी यक़ूलु लती हसन, मेरे बंदों से कह दो ज़बान से जब बात निकालें बेहतरीन बात निकालें। अब देखिए ये एक दूसरा हुक्म है, Whenever you speak best of the speech। ये बाइंडिंग है, हुक्म है हमारे ऊपर कि हमेशा मुंह से अच्छी बात निकालें, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। देखिए कुरान में एक्सेप्शंस दिए गए हैं, जहां हमको हराम खाने को मना किया गया है, चीज़ें हराम डिक्लेयर की गई हैं, वहां पर भी गुंजाइश दी गई है कि अगर खाने को कुछ नहीं है और जिंदगी ख़त्म होने के दर पे है और बगावत का ख्याल नहीं है, तो आप हराम भी थोड़ा सा खा सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए। ये कुरान गुंजाइश देता है, लेकिन यहाँ एब्सोल्यूट हुक्म है कि किसी भी कंडीशन में ज़बान से बुरी बात नहीं निकालनी। कितना ही प्रोवोकेशन हो, कोई कितना ही बुरा कहता है, कोई एक्सेप्शन नहीं कहा कुरान ने कि कोई तुम्हें बहुत बुरा भला कहे, तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे अल्लाह को, तुम्हारे प्रोफेट को, तो तुम भी पलट के बुरा कह देना। नो, हुक्म है, लेकिन किसके लिए? ली इबादी, जो मेरे बंदे हैं। कुल कह दो ली इबादी, मेरे बंदों से। तो अगर मैं उसका बंदा हूं, इफ आई हैव सबमिटेड टू हिम, अगर मैं उसका मुस्लिम हूं, उसका बंदा हूं, तो मेरी मुंह से कभी बुरी बात नहीं निकलेगी। कौल हसन निकलेगा, हमेशा अच्छा कौल निकलेगा, अच्छी बात निकलेगी। ये एक और फैक्टर है जिस पे हमें भी अमल करना है और अपने बच्चों को, अपनी नई नस्लों को सिखाना है कि बेटे कितना भी प्रोवोकेशन हो कम वॉट में, हमें कभी बुरी बात नहीं बोलनी है, क्योंकि याद रखिए हर कोई जो करता है वो अपने करने का जवाबदेह होता है। जो बुरा बोल रहा है वो अपने लिए जवाबदेह है, मैं अपने लिए जवाबदेह हूं। हमारा बिहेवियर दूसरों का रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। वी शुड रिमेन वॉट वी आर। क्या कभी ऐसा होता है कि आप एक शहद की शीशी को किसी सीवेज के पास ले जाएं तो वो उस गटर के पानी जैसी हो जाती है? नहीं होती ना, वो शहद है, शहद रहेगा। आई एम सपोज टू रिमेन प्योर अंडर वॉट एवर सर्कमस्टांसेस। मेरे पास में कोई गंदी और गलाजत बोतल में रख दी जाए, जहर रख दिया जाए, तेजाब रख दिया जाए, मैं शहद हूं, शहद रहूंगा। मैं कभी ये नहीं कहता कि मेरे पास तेजाब की शीशी आके रखी गई थी, उसकी छींटे मेरे ऊपर आई तो मैं भी गुस्से में तेजाब हो गया। कभी शहद ये नहीं कहता। हमें वो रहना है जो हम हैं, प्रोवाइडेड हम वो हों। होता क्या है, हम वो हैं नहीं, हम क्लेम करते हैं। मैं अगर मुसलमान हूं तो ये सारी चीज़ें मुझ पे बाइंडिंग है, ये सारे अहकामात हैं अल्लाह के, जिनसे मैं अगर हटता हूं तो मैं तकजीब भी करता हूं और गुनाह मुसलसल में मुब्तला हूं, ये भी बता दूं। क्योंकि अल्लाह के अहकाम से जब जब मैं बाहर हूं, मैं गुनाह कर रहा हूं, और अगर वो मुसलसल बाहर हूं तो गुनाह मुसलसल है जो मेरे साथ चल रहा है, मेरे साए की तरह, मेरी सोच की तरह। अब ये आयत जो है, इसके साथ एक बड़ी दिलचस्प हकीकत जुड़ी हुई है कि ज़्यादातर जुम्मों के खुतबों में ये पढ़ी जाती है, और हमारी अक्सरियत इसको इस तरह पहचानती है कि खुतबा ख़त्म हो गया, खड़े होने का वक्त है, पढ़ूंगा तो याद आ जाएगा आपको, लेकिन ये खुतबा नहीं है, खड़े मत होइएगा। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताज़ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअज़्ज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। चलो जी, खुतबा ख़त्म। पहला हिस्सा इसका क्या है? इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल करने का, जस्टिस का, टू डू जस्टिस। और अदल के मादे में, मफहूम में नहीं, मादे में एतदाल शामिल है। एतदाल क्या है? मिडिल पाथ, अवॉइड एक्सट्रीम्स, बी मॉडरेट, मॉडरेशन। तो मॉडरेट रहना और जस्टिस करना अल्लाह का हुक्म है, जो हर जुमे के खुतबे में अमूमन हमें बताया जाता है। डू जस्टिस, बेशक तुम्हें अल्लाह हुक्म देता है टू डू जस्टिस। जस्टिस रिश्तों के साथ होता है। क्या मैं इंसाफ करता हूँ, हक अदा करता हूँ, बाप होने का, भाई होने का, बेटा होने का, बेटी होने का, बीवी होने का, शौहर होने का, पड़ोसी होने का, मुल्क का शहरी होने का? एम आई डूइंग जस्टिस? नहीं करता तो अल्लाह के हुक्म को नहीं मान रहा। जस्टिस जिम्मेदारियों के साथ है।
आप एक जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं, जस्टिस नहीं करेंगे तो यू विल ऑलवेज रिमेन आंसरेबल। क्या है इंसाफ? टीचर हूं तो पूरा लेसन तैयार करना है, मेहनत से पढ़ाना है और सिर्फ डिलीवर नहीं करना। देखिए, मां जब बच्चे को खाना खिलाती है, आपने भी खाया होगा, याद होगा अपना बचपन, आज भी शायद होता हो, तो किस तरह मोहब्बत से परोसती है, उसको सहलाती है, फुसलाती है, कोशिश करती है ज्यादा ज्यादा खा ले। ये तो नहीं करती ये रखा है या वो किचन में पड़ा है या डाइनिंग टेबल पे निकाल लो खा लो। टीचर भी जब सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो नॉलेज को परोसने का काम है, उसको अंदर उतारने का काम है, बच्चे को मोटिवेट करके, समझा के, किसी तरह से, एक मिसाल से, दूसरी मिसाल से। अगर मैं ये नहीं कर रहा, आई एम नॉट डूइंग जस्टिस। आई मस्ट एंश्योर दैट वॉट एवर आई एम टेलिंग, वॉट एवर आई वॉन्ट टू कन्वे इज डिलीवर्ड एंड डिलीवर्ड वेल। अंदर उतर जाना चाहिए। और आप मेरी बात मानेंगे, ये बहुत बड़ा सवाब है और अल्लाह की सुन्नत है। हैरत हो रही होगी आपको। मैं आपको मिसाल देता हूं, कुरान की आयत है, तर्जुमा आपको बता रहा हूं कि जब हजरत इब्राहिम ने अल्लाह से पूछा कि तू मुझे बता दे मुर्दे को कैसे जिंदा करेगा, तो अल्लाह ताला ने कहा, इब्राहिम क्या तू ईमान नहीं रखता? कहा ईमान तो रखता हूं, दिल का इत्मीनान चाहिए। ये मैं तर्जुमा बता रहा हूं आयत का आपको। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, अच्छा तू 4 परिंदे ले ले, उनको सिधा ले, फिर उनके टुकड़े 4 पहाड़ों पर रख, उन्हें आवाज दे, देख वो चले आएंगे। कितने अहम मैसेजेस हैं इस आयत में। पहली बात तो यह कि जब अल्लाह से सवाल हो सकता है तो हर एक से सवाल किया जा सकता है। वी मस्ट एनकरेज क्वेश्चंस। देखिए, टीचर की आजमाइश इसमें है कि वो क्वेश्चंस को एनकरेज करता है, डिस्करेज करता है। पहली बात याद रखिएगा, कभी बच्चे को डिस्करेज मत कीजिएगा। हो सकता है जो वो पूछ रहा है आपको ना आता हो, कोई बात नहीं, हर चीज हर एक को नहीं आती। उससे कहिए कि बेटा अपने टीचर से पूछ के या पढ़ के बताऊंगी या बताऊंगा, कल बताएंगे, कल डिस्कस करेंगे इसको। सवाल डिस्करेज मत कीजिएगा। जहन की ग्रोथ सवाल से होती है। आपने सवाल उसके घोट दिए तो ये बिल्कुल ऐसा है कि पहले उसके पैर तोड़ दीजिए लाठी मार मार के, फिर कहिए अब तू दौड़ रेस में। नो, एनकरेज क्वेश्चनिंग, क्योंकि सवाल करना हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह से सवाल किया। दूसरी अहम बात यह कि अल्लाह ताला ने यह बताया, जो सबसे बड़ा पढ़ाने वाला है मौलिम, कि उसने इत्मीनान कल्ब को रिकॉग्नाइज किया। हजरत इब्राहिम कहते हैं कि मुझे दिल का इत्मीनान चाहिए, कन्विंस मी, दो यू हैव आस्क्ड मी टू डू समथिंग, फाइन आई विल टेक इट, बट आई नीड टू बी कन्विंस्ड। ये पूरा एटीट्यूड बताता है इस्लाम का, जो हमारे यहां नहीं अमल में होता। कह दिया मान लो, सवाल मत करना, वरना दोबारा कलमा पढ़ो और जाओ निकाह करो दोबारा बीवी से। इट्स नॉट टेकन। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये है जो कुरान की आयत बता रही है कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम से नहीं कहा कि इब्राहिम तू मुझसे सवाल करता है, कलमा पढ़ दोबारा, चल और घर जा बीवी से दोबारा निकाह करा फिर आइयो। नहीं कहा। ये तरीका है हमारे लिए, ये तालीम है कुरान की, दिस इज इस्लाम। फिर क्या समझाया कि मिसाल दे के समझाया, यानी मिसाल की मदद से सेटिस्फाई करना बच्चे को, स्टूडेंट को, अल्लाह की सुन्नत है, बिकॉज अल्लाह डिड इट। कितना सवाब है जब इस अंदाज से आप पढ़ाते हैं। और जब इस अंदाज से आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप यकीन जाने, मेरी अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, वो ज़िंदगी भर आपको भूलेंगे नहीं। जहाँ मिलेंगे पैर छुएंगे, लिपट जाएंगे आपसे कि सर बहुत दिन बाद देखा, बहुत अच्छा लगा, आप बहुत याद आते हैं। दिलों में जगह बनती है, दिलों के रिश्ते बनते हैं, क्योंकि रिश्ते आप बनाते हैं, उनको टच करते हैं, उनकी ज़िंदगियों को जब उन्हें आप जीना सिखाते हैं, जब उन्हें चीज़ों को अच्छी तरह सिखाते हैं, भली भांति बताते हैं, दिलों के रिश्तों से पूरी इंसानियत चलती है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो बहरहाल ये मैंने सिर्फ इसलिए रखा था कि ये वो चीज़ें हैं जो कुरान से दूर होने की वजह से हमें नहीं पता कि हमें हुक्म है कि जस्टिस करें, हमें हुक्म है कि एहसान करें, हमें हुक्म है कि पास वाले को दें, ईताज़िल कुर्बा, जो भी पास है तुम्हारे, वो फिर डिस्टिंक्शन नहीं है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, किस कास्ट का, किसका रीजन का, किस जबान का, जो आपके पास है। इसमें आगे कुछ और स्लाइड है, इसमें थोड़ा इसका एलेबोरेशन होगा। और मना किया गया 3 चीज़ों से, वयन्हा अनिल फ़ाहिशाए वल मुनकर वल बग़य, फहश से, बेशर्मी की बातों से बचो,
से बचो। मुनकरात क्या है? एनीथिंग विच इज कंट्रेरी टू रीजन, खिलाफ अकल जो चीज़ है उनसे बचो, और बगावत से बचो। यानी जिस चीज़ को अल्लाह ने मना किया है उस पर वो गलती नहीं होती, गलती नादानी से होती है, जानते बूझते जो चीज़ की जाती है बगावत होती है। मालूम है कि अल्लाह ताला ने इंसाफ करने का हुक्म दिया है, लेकिन एक सिलेक्शन कमेटी में मैं बैठा हूँ, सेक्रेटरी एजुकेशन का फ़ोन आ जाता है या उनके पीएस का कि साहब इसका अपॉइंटमेंट करना है। अब मुझे उस वक्त तय करना है कि मेरा खुदा जॉइंट सेक्रेटरी है या अल्लाह है, जिसको मैं फॉलो करूंगा वही मेरा खुदा है। ये क्रूशियल टाइम्स होते हैं, और इसमें देखिए एक बात मैं हमेशा कहता हूं, और आई हैव प्रैक्टिस इट थ्रू आउट माई लाइफ, मुझे खुशी है इस बात की, इनकॉम्पिटेंट टीचर्स का अपॉइंटमेंट करना क्रिमिनल है। क्यों है क्रिमिनल? क्योंकि मैं जानता हूं टीचर क्या होता है, कैसे जिंदगी बनाता है। आज मुझे टीचर्स अच्छे ना मिलते तो आज मैं यहां खड़ा ना होता। मैं जो कुछ हूं अपनी जिंदगी में अपने पेरेंट्स और टीचर्स की वजह से। और मेरे ज़माने की पेरेंटिंग एक्सटेंडेड पेरेंटिंग थी। एक्सटेंडेड पेरेंटिंग क्या थी? कि मेरे रिश्तेदार, मेरा मोहल्ला, मेरी सोसाइटी भी पेरेंट्स की तरह काम करता था। वो भी मुझे पकड़ते थे, मुझे थप्पड़ लगाते थे, मुझे सिखाते थे कि तुम ये क्यों कर रहे हो। इसे मैं एक्सटेंडेड पेरेंटिंग कहता हूँ, कि मोहल्ले का रोल था, कम्युनिटी का रोल था, सोसाइटी का रोल था, रिश्तेदारों का रोल था। आज हम इतने सुकड़ गए हैं कि मेरा बच्चा इतना प्रोटेक्टेड है कि कोई उसे कुछ नहीं कह सकता, और मैं उसको गुरूम ढंग से करता नहीं। करता तो ये नजर ना आते जो आज नजर आ रहे हैं प्रोडक्ट्स। ये सब आपको एड्रेस करनी है चीजें एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, क्योंकि आपको जिंदगी में आप पेरेंट स्टेज में भी जाना है और टीचर के स्टेज में भी जाना है। दोनों डिपार्टमेंट्स आपके पास हैं, दोनों आग के खेल हैं। तो माइंड इट, दोनों आग के खेल हैं। तरबियतों में कमी रह जाती है तो जवाबदेह होते हैं हम। अब देखिए, इन ट्रूथ द वेदास इंस्पायर वन टू बी चैरिटेबल। वहां हमें ईताजिल कुर्बा बताया गया। वेदास क्या कह रही हैं? द सोल पर्पज ऑफ अर्निंग शुड बी टू स्पेंड मनी ऑन चैरिटेबल एक्ट्स, अर्न विद 100 हैंड एंड डिस्ट्रीब्यूट विद 1000। अथर्ववेदा से है ये। ब्लेस्ड आर द हैंड्स दैट सपोर्ट द डेस्टिट्यूट, ऋग्वेदा। हर शख्स का दर्जा उसके अमल के लिहाज से है। ये आयत मैंने इसलिए ली कि अमल इज इंपॉर्टेंट। मैं क्या सोचता हूं, मेरी फिलॉसफी क्या है, मेरी आइडियोलॉजी क्या है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट आई डू इज इंपॉर्टेंट। हर शख्स का, जब ये आयत का मैं तर्जुमा आपको सुना दूं, ये है अनाम 132। हर शख्स का दर्जा उसके अमल के लिहाज से है, और तुम्हारा रब लोगों के अमाल से बेखबर नहीं है। ही नोज व्हाट वी आर डूइंग। तो वो कहता है हर एक का दर्जा अमाल से है। आई एम व्हाट आई डू। मैं लाख क्लेम करूं कि मैं बहुत कट्टर मुसलमान हूं, बहुत अच्छा मुसलमान हूं, लेकिन मेरी हरकतें अगर मुनाफिकाना है, फासिकाना है, तो मैं मुनाफिक हूं, मैं फासिक हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं। आई एम व्हाट आई डू। ये बहुत अहम चीज़ है। इसलिए अमल पे फोकस कीजिए और अमल की तरबियत दीजिए। इसकी मिसाल मैं अक्सर ये देता हूं कि बच्चों की तरबियत की एक मिसाल, घर में एक नमूना देखिए। 2 घर हैं। एक घर में बच्चा शुरू से क्या सुनता है कि अब खाला की बच्ची की शादी होने वाली है, कहाँ से ड्रेस लेना है, मुझे फला डिज़ाइनर का सूट लेना है, उस शादी में मैंने ये कपड़े पहने थे, मुझे रिपीट नहीं करने, वो मेरी कजिन ऐसा जोड़ा ले आई थी, मुझे उससे अच्छा लेके आना है। एक घराने का सेटअप ये है। और इसी में एक चीज़ और जो बड़ी कॉमन है कि बच्चा बचपन से नोट करता है कि जब अम्मी की खाला आ रही हैं तो अम्मी का एटीट्यूड क्या है, और जब ताई अम्मी आ रही हैं तो क्या एटीट्यूड। ये घर घर की कहानी है। मेरा मैका मेरी ससुराल। दूसरा घराना क्या है कि बाप हेड ऑफ द फैमिली घर में आके तनख्वाह के पैसे या पैसे देता है, और माँ या बीवी से ये कहता है जो खर्चा देखती हो कि देखो इस महीने खर्चे कुछ बचा के रखना, क्योंकि पड़ोस में जो खाला रहती हैं इनके बच्चों की फीस देनी है, फीस के दिन आ रहे हैं, या पड़ोस में वो जो औरत है उसकी बच्ची की शादी होनी है, उसके लिए हमें सामान लेना है, या उनके घर में हमें राशन भिजवाना है, उनके यहाँ खाने के पैसे नहीं हैं। दोनों घरों की तरबियतें बच्चों की अलग है। जिस घर में बच्चे घर में ये देखते हैं कि किस तरह से पैशन है, लोगों की हमदर्दी हमारे यहाँ हो रही है, उन्हें किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, इंसान की खिदमत कैसे होती है वो जानते हैं। ये घरों के नमूने हैं जो हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। देखिए घर में
हम समझते हैं कि जब अम्मा अब्बा बच्चे को घेर के बैठ गए और उसको कुरान शरीफ पढ़ाने लगे या होमवर्क कराने लगे, जब आप उसे कुछ सिखा रहे नहीं, उस वक्त तो आप कोशिश कर रहे हैं, ये डेलिब्रेट एक्ट है, बच्चा एक्सेप्ट कर सकता है या ना करे, लेकिन 24 घंटे जो आपको वॉच कर रहा है और एक स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब कर रहा है चारों तरफ चीज़ों को, उस वक्त उसको तरबियत हो रही है, उसकी शख्सियत साजी हो रही है। और ये काम बहुत अर्ली एज में शुरू हो जाता है। बहुत छोटे छोटे बच्चे जिनको हम गिनते नहीं हैं, वो इस चीज़ों को समझते हैं घर में क्या हो रहा है। तो घर में हम जो करते हैं, जो बातें करते हैं, वही तरबियत बनती है। अगर घर में इंसानियत के यानी अमल के मॉडल नहीं उठेंगे तो इंसानियत की तरबियत नहीं हो सकती। यही क्लासेस की सूरत हाल होगी। वही है जिसने तुमको ज़मीन का खलीफा बनाया और तुम में से बास को बास के मुकाबले में ज़्यादा बुलंद दर्जे दिए ताकि जो कुछ तुमको दिया उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। ये आयत हमें ये बताती है कि अगर हमें कुछ ज़्यादा मिला है, चाहे वो पैसा हो, सल्तनत हो, पावर हो, जो भी है, तो वो आजमाइश है। वेस्टेज को मना किया है, बेजा खर्च ना करो, बेशक अल्लाह बेजा खर्च करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अपने आप को बड़ी चीज़ समझते हैं और फ़ख्र जताते हैं, जो खुद कंजूसी करते हैं और दूसरे को कंजूसी में मजबूर करते हैं। ये कॉमन ह्यूमैनिटी के एट्रीब्यूट्स हैं जिनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि बड़ाई करना, घमंड करना, अपने आप को बड़ी चीज़ समझना कोई अच्छी बात नहीं, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। ट्रू एजुकेशन शुड एम एट इम्पार्टिंग ए ह्यूमनिस्टिक एटीट्यूड एंड द स्पिरिट ऑफ सर्विस। The Vedas censor the self-centered man whose accomplishments are aimed exclusively at selfish end. And what exactly it says? The small-hearted man procures food in vain. I speak the truth. This verily is his death. यानी वो खाना नहीं है, उसकी मौत है। He cherishes neither God nor friend. He who eats alone eats sin alone. कि जो खाना या जो भी चीज़ मिलती है उसको अकेले बैठ के खाता है, सिर्फ अपने लिए सोच रहा है, सेल्फिश है, तो वो सिर्फ अपने लिए गुनाह ही कर रहा है, गुनाह ही बना रहा है। यानी दूसरों के लिए सोचना है, दूसरों की खिदमत करनी है। अल्लाह की बंदगी करो, यानी फॉलो, सबमिट टू हिम, उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ, यानी किसी और सिस्टम को फॉलो ना करो। यहाँ कुछ कन्फ्यूजन्स रहते हैं हमारे। अल्लाह की बंदगी का मतलब ये है कि फॉलो व्हाट हैज़ बीन रिवील्ड टू यू, जो तुम्हारे को अल्लाह का हुक्म आया है, जो कुरान में लिखा है, उसको फॉलो करना है। और उसके अलावा किसी और सिस्टम को फॉलो नहीं करना। किसी और सिस्टम को फॉलो करना ही शिर्क होता है। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ। मिस्कीन होते हैं डिस्प्लेस लोग, जिनका घर सकन टूट गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। कराबत वाले पड़ोसी से और अजनबी पड़ोसी से, यानी जो तुम्हारा नोन नेबर है, जो अननोन नेबर है, सबसे एहसान करना है, डू गुड टू देम। पास बैठने वाले से, जो तुम्हारे पास भी बैठा हो, और मुसाफिर से, और जो तुम्हारे नौकर या तुम्हारे सब ऑर्डिनेट्स हों, उनसे अच्छा सलूक करो, या एहसान करो। अब देखिए पूरा स्पेक्ट्रम ह्यूमैनिटी का यहाँ बयान कर दिया गया कि आपके रिश्तेदार हैं, नेबर हैं, थोड़ी देर के नेबर हैं, लंबे नेबर हैं, कि जो पास बैठा है वो थोड़ी देर के लिए आपके पास बैठा है, उनके लिए भी अल्लाह का हुक्म है कि डू गुड टू देम, एहसान करो, उनके साथ अच्छा करो। ये ऐसे इंसानियत के पैगाम हैं जो हमें अमल भी करना है। और क्यों करना है? क्योंकि इन्ना रहमतुल्लाहि लिक़रीबिल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत एहसान करने वालों के साथ है। जो लोग दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, अल्लाह की रहमत उनके साथ होती है। ऑल डीड्स ओरिजिनेट फ्रॉम थॉट्स। मैं बिल्कुल ख़त्म के करीब हूँ, अब थोड़ी देर पेशेंस और रख लीजिए। मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा इम्पेशेंट हैं आप लोग, शायद मेरा लेक्चर भी लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया। मैं वाइंड अप कर रहा हूँ अब। थैंक यू वेरी मच। ऑल डीड्स ओरिजिनेट फ्रॉम थॉट्स, प्योर थॉट्स रिजल्ट इन कंस्ट्रक्टिव डीड्स वाइल इम्प्योर थॉट्स रिजल्ट इन, इसमें मैं एग्जैक्ट वो श्लोक पढ़ देता हूँ। दिस माइंड ऑफ माइंड विच ट्रेवल्स अफार, the light of lights which wanders to far off places, whether I am asleep or awake, may it resolve to do what is good and what is pure. Let noble thoughts come to us from all sides. हमें एक बेहतरीन उम्मत कहा गया है, जो इसलिए भेजी गई है कि लोगों को अच्छे कामों की तरफ लेके आते हैं, बुरे कामों से मना करते हैं, यानी खुद भी अच्छे काम करते हैं, जब भी दूसरों से अच्छे कामों के लिए कहेंगे। इसी के साथ आखिरी बात मैं ये कह दूँ कि इस आयत को हमेशा याद रखिएगा कि अल्लाह हमारे साथ है हमेशा। वह हुआ माकुम ऐना मा कुंतुम, कुरान की आयत है जो हमें बताती है कि हम जहाँ पे भी हों अल्लाह हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका फॉर योर पेशेंस। थैंक यू वेरी मच।
सर बहुत ही खूबसूरत। सर हम आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं इस कलीदी खुतबा के लिए।